Hello. Okay. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Good morning to all of you. A hearty welcome to Ruchi Dave Madam and all the attendees for the webinar on the role of butterflies in ecology, conservation, and bringing awareness among people about climate change through pollinators. I am Natasha, Information Officer at BNHS EICP. I would request all of you to please mute yourselves and turn off your cameras. Now I request Mr. Nandakishore Dudhe, Program Officer, BNHS EICP, to provide a briefing about EICP program. Thank you, Natasha. Uh, thank you, Natasha, and thank you once again all our participants and our guest speaker, Ms. Ruchi Dave. So, about the EICP. EICP stand for the Environment Information Awareness Capacity Building and Livelihood Program. So, this program is established in 1996, and it is supported by Ministry of Environment, Forest, and Climate Change. So, our main objective is like to publish our Bureau's newsletter, which is dedicated to avian ecology. And recently, we had published the two special issue. One is wetlands of Jammu and Kashmir, and second one based on the power lines and like impact of birds on due to the power line. So both issues are available on our website. Here you can see the website link bnhs.envis.nic.in. So you can access all our published issues through the websites. Apart from that, we will regularly publish our knowledge product. So we have all the knowledge products are available on our website. So in the knowledge product like threatened birds of Maharashtra, critical endangered species of Maharashtra, like vultures of India. These are all knowledge products, and it's all are available on our social media platform as well as our website. So you can download. It is available in high quality, so you can use whenever you want. Like school students have joined, maybe some college students have joined. They can print out this document and put up on their notice boards, school or college notice boards. So these are all popular knowledge products, and you can use. It's a free of cost to download. And if you want the hard copy, also we can provide our Viceroy's newsletter. Just you have to fill our Google form. So we will offer you a free membership, BNHS EICP free memberships. So also we will regularly conduct skill development program, GSDP courses. These courses is for the unemployed youth, because most of the students have passed 10, 12, but they don't have the skill to catch the particular jobs. So in that case, we will provide the skill under the Green Skill Development Program. And we had successfully completed 4 GSDP courses, which including bird migration study, key biodiversity area, KBA, people biodiversity register, PBR. So all our information also available on our websites. So thank you, Natasha, and welcome you all our participants. So now, Natasha, please continue. Thank you, Nandakishore sir. Now let me introduce Mrs. Ruchi Dave. She is a research student at the Bombay Natural History Society, currently pursuing her PhD on vultures in the state of Gujarat. She currently also serves as a range forest officer in Vyara division of the Gujarat Forest Department. Prior to joining the Forest Department, she was honorary wildlife warden in Bhavnagar, Gir for a decade, where she promoted community participation in wildlife conservation. She also played a key role in the development of different projects at the Statue of Unity in Ekta Nagar, the dream project of Prime Minister Sri Narendra Modi. She has authored the book Field Guide of Common Butterflies of CASPOS Coimbatore, published by the Ministry of Environment and Climate Change, Government of India. Also, on the request of the Honorable President Shri Ramnath Kovind, Gujarat government appointed Mrs. Ruchi Dave to Rashtrapati Bhavan, where she developed Arogya Vanam, a medicinal garden to promote herbal medicine in the country.
The project was then inaugurated by Prime Minister Shri Narendra Modi in presence of the President at Rashtrapati Bhavan. In addition to these achievements, Mrs. Ruchi Dave has numerous research papers to her credit on vultures and butterflies, which have been published in both national and international journals. Now, I request Ruchi Madam to please begin the session. The webinar is scheduled to last for 1 hour and we will hold the question and answer session at the end. Thank you. Ruchi Madam, please, I request you to start the session. Thank you, Natasha. Thank you, Nankishore and thank you very much, Director Sir BNHS, for providing me the platform on which I can share my experience and somewhat about the. As a forest officer, I can understand the community participation and in democracy, particular the awareness about different conservation projects or policies is very much required. So, thank you all for providing me the chance where I can share some of my interest and some of my experience. So, let's start first. Okay. Tankishore, is it my screen is visible now? Yes, yes, ma'am. It's visible. Okay, okay, fine. As Natasha has given me, thank you, Natasha, for that interesting and this introduction. My main work on vulture and of course some in land. Right now, I am in Gir National Park only. But when we think about conservation, when we think about awareness, it is very much required to select a species which is omnipresent. If I want to work for lion, I have to come to Gir. If I want to come to work on tiger, I have to go to the place where tiger is available. And so we need to select some species which is omnipresent. So this is why here we have selected butterflies to connect people for the conservation. uh, Outline of my topic is like we very briefly we talked about pollinators and very much basic information about butterfly, because it is not just because butterfly is a very interesting creature, right from egg, pupa, adult, all have so many stories. So like on one stage we can take one webinar. So here we only get some basic information about butterfly and role of butterfly in climate change in butterflies. So how we can correlate, how we can learn how they are indicated, and how we can connect people to conservation with the help of butterflies. This is all about my today's talk. So like all we know that pollinator is anything that helps to carry pollen from male part of the flower to female part of the flower, that is known as a stamen and stigma. So, like so many living creature play this important role, and butterfly, birds, moth, bees are like one of the well-known pollinators. And why the pollinators important? Like for food, whatever we eat food, every third or like bite is due to only pollinators we have, due to only pollinators. Santosh Kumar, please mute yourself. Santosh Kumar, please mute yourself. Sorry, ma'am. Please continue. Ruchi ma'am, please unmute yourself. Uh, Ruchi ma'am, I think there is some network issue. So please check the internet. You are not like Ruchi yeah, ma'am, you are not audible. screen is visible, ma'am, but please check your audio.
Okay, now I am audible. Yes, ma'am. Perfect. Okay. Okay, here I have mentioned some names like crow, tiger, joker, lime, raja. All these are not butterfly. See, so like butterflies, if we come with the name, अरे किसी किसी ने बोल दिया ये कौवा का नाम कौवा क्यों है और बंदर को बंदर क्यों कहा जाता है. We don't have reason why बंदर is known as a बंदर or the monkey is known as a monkey, but we have very much interesting reasons for this particular butterfly, why it is known as a crow or tiger or joker. Isn't it funny and interesting that some butterflies known as joker? All butterflies are like equivalent, even though few of them are raja, some of them are nawabs. So like yeah, every stage of butterflies are very much interesting. They are neither fly nor butter, even though they are known as a butterfly. So they have story why they are known as a butterfly. Like their name is depend on color and morphology, like silver line crow, joker, tiger. Some of their name is depend on host plant on the which like castor and lime. um, like some butterflies name, then they get their name with their behaviors. So all this part, like if I want to give a new name to butterfly, definitely if the three people will come together and they will select name individually, they mostly the same name will come. Like if we see some yellow butterfly, we either give them yellow or orange or golden. So like it is very much easy to connect for the beginners with butterfly, like for the key, for the amateurs who have no direct connect with nature, they have no specialty with botany, zoology, nothing. They are laymen, even though we can easily connect them with butterfly, and their name indicate this very thing. See, this is one of the dancing butterfly of our country, which is known as a Judy. And आपके वहाँ भी बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि हम पपेट शोज करते हैं, जिसमें रंगलो रंगली ऐसे गुजरात में और राजस्थान में फेमस कैरेक्टर्स हैं, और कहीं भी जगह पे पपेट शो होगा. तो वैसे ही ये पपेट का ही वेस्टर्न का जूडी एंड पम आर पपेट कैरेक्टर्स. और ये बटरफ्लाई को भी आप देखेंगे तो वो एक बहुत अच्छे से जम कर करके पत्तों पे घूमता रहता है और उसको देख के ही मजा आ जाता है. तो अगर हम यहाँ से नाम देंगे तो हम डेफिनेटली उसको रंगलो या रंगली देंगे. दिस वन इज एप फ्लाई. उसका प्यूपा है वो ऐप के जैसा है, तो एप फ्लाई है, पर वो कैसे इकोलॉजी में रोल प्ले करता है. मिलीबग होती है जो प्लांट्स को खा जाती है. तो ये बटरफ्लाई वो कार्निवोर है, वो बिल्कुल प्लांट का बहुत अच्छा फ्रेंड है. तो वो मिलीबग को खा लेता है. उसकी कैटरपिलर है वो मिलीबग को खा लेती है और वो ऐसे हमारी हेल्प कर देता है. ये एक बटरफ्लाई है जो नवाब है. उसकी कैटरपिलर का हर एक स्टेज में एक अपना मुकुट रहता है, ऐसी ऐसी एक रचना रहती है. तो उससे भी, और उसका पूरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, नवाबों जैसा, डरता नहीं है, बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है नवाब जैसा, बिल्कुल डरेगा नहीं, हिम्मत वाला है. तो ये बटरफ्लाई नवाब है. एक मैं अभी एक वीडियो प्ले करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो. हम देखेंगे. ये एक कैटरपिलर है. ये एक हेलीकॉप्टर कैटरपिलर है.
और कोई चैट में अगर बता सकता है तो बताए ये किसकी कैटरपिलर है। ओके, वो सनबीम की कैटरपिलर है। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये देखना है कि some butterflies feed on flowers, some butterflies feed on fruits, some feed on like mud and some salt, some feed on sap. But when we observe this सनबीम किसी पे नहीं जाता, वो फ्लावर पे विजिट नहीं करता, वो सैप पे नहीं जाता, वो मड पे नहीं जाता। देन वी वर सर्चिंग कि वो खाता क्या है। देन वी केम टू नो दैट सनबीम वो एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर है, उस पे आता है। तो अभी यहाँ पे ये देखना है कि एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर कहाँ होता है। तो ये लीफ होता है, लीफ के नजदीक में ऐसे छोटे छोटे दो कंटक जैसी कुछ होता है जिसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। स्टिप्यूल में एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर होता है। तो अभी यहाँ एक बात आई कि फ्लावर में नेक्टर क्यों होगा पोलिनेशन के लिए, तो फिर पत्तों में नेक्टर क्यों होगा। वो एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर है, वो पत्तों के आसपास क्यों होगा, वहां तो पोलिनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर समझ में आया कि वो प्लांट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर है उसको खाने के लिए एंट्स आएगी, एंट्स वो एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर खाएगी, उस टाइम पे कोई हर्बीवोर है वो प्लांट को खाएगा तो वो उसको काटेगी। और ये सनबीम है वो भी एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर को पीता है, उसकी कैटरपिलर है वो भी ऐसे प्लांट पे वो एग ले करता है। और तो उसको कंपटीशन है बीज एंड उनसे। तो ये दो पूंछ है वो कैटरपिलर को दी गई है, वो अपने हिसाब से जब चाहे वो निकाल के मक्खी और वो सब उड़ा सकती है। तो कैटरपिलर है सो मेनी मैकेनिज्म, किसी को ऑस्मेटेरियम है, कोई है वो कैमोफ्लेज है। पर इसके साथ ये ऐसा भी है कि ऐसे दो ब्रश, जो हम बॉटल के ब्रश होते हैं, ऐसे दो पूंछ वाली ये कैटरपिलर है। कोई बटरफ्लाई ऐसा होता है कि जिसके मेल को दो पूंछ होती है, फीमेल में तीन पूंछ होती है एडल्ट बटरफ्लाई में। तो अगर हम पूरा उनको एक एक को देखते जाएंगे तो हमें उनका बहुत नजदीक से पता चलेगा कि वो कैसे एक अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगेन आई कम टू द टॉपिक कि क्यों बटरफ्लाई को पसंद किया। वो ओमनी प्रेजेंट है, वो रन में भी है, वो डेजर्ट में भी है, वो फॉरेस्ट में भी है, वो समंदर के पास भी है, वो बहुत पॉल्यूटेड सिटीज में भी है, वो गांव में भी है, वो खेत में भी है, तो हर जगह पे है। तो बॉम्बे में रहने वाले आज जब हम वेबिनार कर रहे हैं, हमें एवरी कॉर्नर से कोई ना कोई हमें जुड़ा है। तो कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ पे उनको बटरफ्लाईज है वो नहीं मिलेंगे। अगेन वो निग्लेक्टेड स्पीसीज है, वो कैसे निग्लेक्टेड है वो मैं आगे बताऊंगी। पर अभी हम इतना तो देख सकते हैं कि वो आज से 3000 साल पहले अपने स्थापत्य में था। वो शायद अपनी बहुत सारी कविताओं में है, हर लैंग्वेज में उनका कुछ ना कुछ लिटरेचर में वो है। पर आज हमारे पास उनको हम बटरफ्लाई से ज्यादा उनके बारे में जानते नहीं है। उनकी अगेन वो लाइफ साइकिल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एक से एक बहुत सारे क्रिएचर्स हैं वो ले करते हैं, जैसे बर्ड भी एक देते हैं, रेप्टाइल्स भी देते हैं, आइदर उनके गोल हो गए या ऑब्लोंग हो गए और उनमें कलर्स हो गए। पर अगर बटरफ्लाई के हम एग्स देखें तो हर अलग अलग शेप में है, बहुत सारे कलर्स में है। और जैसे वो कैस्टर पे जो बटरफ्लाई एग ले करता है, अगर आपने कैस्टर का सीड देखा और ये कैस्टर बटरफ्लाई का एग देखा तो जैसे वो सीड का ही मिनिएचर है ऐसा दिखता है। इतनी ही वैरायटी कैटरपिलर्स में है, प्यूपा में है और एडल्ट में है। अगर मुझे लायन बहुत पसंद है या वल्चर भी मुझे बहुत पसंद है, पर मैं अपने घर पे वो ब्रीड नहीं कर सकती। किसी को अभी मैंने ब्रीड कर भी दिया तो मैं उसको वाइल्ड में वापस रिलीज नहीं कर पाऊंगी। पर इन केस ऑफ बटरफ्लाई इट इज वेरी इजी टू ब्रीड देम एट ओन होम, और हम वापस उसको वाइल्ड में रिलीज भी कर सकते हैं। Sorry, ma'am. Sorry to. यस नंदिशूर। Sorry, ma'am. Your screen is not visible. Someone has shared their screen, so your screen is not visible. So kindly request to please share your screen again. ओके,
I have to do again. Okay. Is it visible now? Yes, yes, ma'am. Yes, now it's visible. Okay. Thank you. Okay. Or this species is very easy to develop the linkage for the environment and people. If I ask some kids or somebody who have not much attachment with trees or any other forest or river anything, तो अगर हमें उनको उनको बोलेंगे कि पेड़ लगाओ, आज पेड़ लगाएंगे, 5 साल बाद उसमें फ्रूट आएगा, तो इतनी पेशेंस किसी में रहती नहीं है। पर अगर वो बटरफ्लाई को प्यार करता है, तो जो बटरफ्लाई उसको घर पे लाना है, तो वो उसका होस्ट प्लांट लगाएगा, उसका फूड प्लांट लगाएगा, तो वो इजीली वो पेड़ के साथ उसकी एक बॉन्डिंग है वो डेवलप्ड हो जाएगी। तो ये अलग अलग छोटे छोटे बच्चे हैं और सबने ऐसे बटरफ्लाईज ये पकड़े नहीं है, हाथ पे लिए। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो हाथ पे लिए हैं, पकड़े नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चे हैं वहां से लेके ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनके हाथ से भी हमने ये ब्रीड किए गए बटरफ्लाईज है वो रिलीज करवाए थे। तो कोई भी हो, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, पोस्ट, डेजिग्नेशन, कोई भी हो, हम बटरफ्लाई के मदद से उनको जोड़ सकते हैं और हम खुद भी जुड़ सकते हैं। दिस ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन के बटरफ्लाई है वो देख सकते हैं, वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, पर सुन नहीं सकते। वो अपने एंटेना और की से टेस्ट स्मेल कर सकते हैं और फूड की फीड की हेल्प से वो टेस्ट ले सकते हैं। अभी देखते हैं उसकी मिमिक्री। ये कमांडर बटरफ्लाई है, उसकी कैटरपिलर है। जैसे हमें एक सूखा हुआ लीफ लगता है, ठीक है, ये उसका ही प्यूपा है। उसके साथ में उसने ऐसी एक विजुअली डेवलप किया है कि जिससे वो मिसगाइड कर सके अपने प्रीडेटर्स को। ये सारे बटरफ्लाईज में से ये अपना दो बटरफ्लाई की जैसे लीफ है, लीफ की ही पूरी पैटर्न है, उस तरह से उसने अपने आप को मर्ज किया है। ये ग्रेट एग फ्लाई की कैटरपिलर है जो एक ग्रीन वाइन स्नेक है, उसका जैसे छोटा बेबी हो ऐसा ही लगता है। ये सिर्फ उसको वो प्रेडेटर्स के बचने के लिए है। ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉमन बटरफ्लाई की कैटरपिलर है, टाइगर बटरफ्लाई की कैटरपिलर है। तो इसमें देखिए, अगर ये मिल्कवीड बटरफ्लाई माना जाता है, तो जो मिल्क रहता है ये अपना मिल्कवीड का, वो इतना स्टिकी होता है कि अगर कैटरपिलर ने उसको उसमें चिपक के मर सकती है। तो कैटरपिलर भी बहुत स्मार्ट होती है, वो छोटा सा एक कट लगाएगी जिससे कि वो मिल्क है वो सूख जाए पर लीफ ना सूखे, और फिर वो उस पे खाती है। सेम वे जब कैटरपिलर बहुत छोटी है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती इसका पॉइजन, तो पहले वो लीफ का सॉफ्ट टिश्यूज है वो खाएगी और फिर उसके बाद जाके वो फिर सब कुछ खाने लगेगी। हार्ट टिश्यू है, ये अपना फ्लावर है, बर्ड है, सब कुछ खाने लगेगी। तो और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर समर है, धूप ज्यादा है, तो ये ब्लैक उसका जो बैंड है वो बहुत पतले होंगे, थीन होंगे। और अगर ठंड ज्यादा है तो ये जो ब्लैक कलर्स है वो पूरा ब्रॉड होगा, व्हाइट है वो, व्हाइट और येलो है वो कम होगा। तो सीजन के हिसाब से उनके कलर में भी ये वेरिएशंस है वो आते हैं। हम ये जानते हैं कि सिर्फ स्नेक है वो अपनी स्किन निकालते हैं, पर बटरफ्लाई भी निकालते हैं। ये सेम बटरफ्लाई के अलग अलग स्टेजेस की कैटरपिलर है। छोटी होती है तब वो बर्ड ड्रूपिंग जैसे स्टेज में होती है, फर्स्ट और सेकंड इन स्टार में, और इसके बाद वो लीफ जैसे लगेगी। तो इसमें भी ये है कि वो क्यों करती है, तो कि बर्ड ड्रूपिंग है वो छोटा थोड़ा ही होगा, इतनी बड़ी हो जाएगी, इतना बड़ा नहीं होगा, तो वो किसी के भी ध्यान में आ जाता है। तो जैसे उसका साइज बढ़ता है, वो अपने आप को एक दूसरे कलर में कैमोफ्लेज कर देती है।
और हमें बहुत टाइम ये होता है कि जब हमारे क्रॉप में, पेड़ में कहीं पे भी कैटरपिलर आ जाती है तो हमें ये लगता है कि हमारा प्लांट है वो खा जाएगी। पर जैसे हम अपने हेयर को ट्रिम करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ को कुछ इश्यू नहीं होता, उसी तरह से कैटरपिलर के आने से हमारे प्लांट को एज सच कुछ नहीं होता। और वो बहुत एनवायरमेंट सेंसिटिव है। कुछ एनवायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ा या बारिश आ गई या कुछ भी हुआ तो वो एक साथ बहुत सारे मर जाते हैं। और 100 में से 80 to 84% है वो किसी ना किसी का शिकार हो जाते हैं। और 2 या 3% है वो ही एडल्ट फॉर्म में जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कभी घर पे कैटरपिलर आ रही है, कोई पेड़ पे आ रही है, हमारे कोई प्लांट पे आ रही है, तो हमें खुश होना है कि आगे जाके इसमें से कुछ बटरफ्लाई बनेगा। ये लाइम बटरफ्लाई की कैटरपिलर है, उसको फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन से अलग अलग बटरफ्लाई में ये इन्फेक्शन होता है। तो कभी किसी के सारे मेल वो होते हैं, मर जाते हैं, मेल बटरफ्लाईज मर जाते हैं। इसमें ये होता है कि ये कैटरपिलर एडल्ट फॉर्म में आएगी ही नहीं, पर बहुत सारे कंट्री में ये इन्फेक्शन को मेडिसिन की तरह यूज होता है। जैसे हम सिल्क मॉथ को ब्रीड इसी के लिए करते हैं कि सिल्क हमें मिले, ऐसे ही लाइम बटरफ्लाई को इन्फेक्टेड किया जाता है कि जिससे हमें ये इन्फेक्शन के साथ ये मिले और फिर उसको मेडिसिन में काम हो। ये कुछ बटरफ्लाईज की मिमिक्री है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि कभी कोई टाइगर कभी बंदर नहीं दिखेगा, पर बटरफ्लाई के केस में ऐसा है कि एक बटरफ्लाई दूसरे बटरफ्लाई जैसा भी दिख सकता है। और अभी हमने आगे कैटरपिलर में देखा था कि एक बटरफ्लाई है वो सांप के जैसा भी दिख सकता है। ठीक है, ये बटरफ्लाई सूखे पत्तों जैसा है, गुजराती में हम इसको तमाल पत्र बोलते हैं बटरफ्लाई को, और ये ओक ब्लू है। हाँ, अभी बात आई कि कहाँ पे हमारी निग्लिजेंस है। तो बटरफ्लाई हमारे आसपास है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम उसको अच्छे से घर में ब्रीड कर सकते हैं। वो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत है, फिर भी हमें बहुत सारा पता नहीं है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कुछ बटरफ्लाईज जैसे पी ब्लू, ग्राम ब्लू ऐसे बटरफ्लाईज है वो शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है। दैट मीन्स कि आपने उसका अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा या एडल्ट बटरफ्लाई किसी को मारा है तो फिर आपको लायन, लेपर्ड, टाइगर को मारने जैसी सजा, या तो हिरण शेड्यूल 2 है तो हिरण को मारने की जैसी सजा है वो हो सकती है। तो अगर हम वहां पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, इवन उसके हैबिटाट लॉस, अगर हमने वीडिसाइड डाला तो हैबिटाट लॉस हुआ शेड्यूल स्पीसीज का, तो उसकी हमें सजा हो सकती है। तो ये थोड़ा एक जगह पे हमें थोड़ा फनी लगता है कि ऐसा क्यों हो गया कि जैसे अगर हम इसका हम खेती करेंगे तो इसकी तो पेस्ट आएगी तो कोई ना कोई फार्मर तो करेगा, अगर फार्मर करेगा तो उसको मारने के लिए उसको हम हुक कर सकते हैं। पर वो इसलिए कि बटरफ्लाई है, उसमें हमारी निग्लिजेंस बहुत ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो एक रेफरेंस लिया गया वो ब्रिगेडियर WH इवांस की बुक है, BNHS में पब्लिश हुई, हैंडबुक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन बटरफ्लाईज। उसमें उनका मुख्य काम अंडमान निकोबार में था, और जब उन्होंने इंडिया का पूरा अपना टूर किया होगा तब उन्होंने कुछ बटरफ्लाई रेयर, कुछ बटरफ्लाई कॉमन, वेरी रेयर, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया में डाला है। उसके बेस पे जो भी रेयर या वेरी रेयर थे उसको शेड्यूल स्पीसीज में डाल दिया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। वी वर गॉट ट्रेनिंग इन कोयम्बतूर इन 2016-18, 2 साल 2016 से 2018 तक हम कोयम्बतूर में थे। ड्यूरिंग दिस वेरी 2 ईयर हमें एक भी पेंटेड लेडी है वो हमारे कास्पोस कोयम्बतूर कैंपस में नहीं दिखी। पर 2019 में हमें वहां से बहुत सारे कोयम्बतूर से फोटोग्राफ मिले कि पेंटेड लेडी वहां पे दिखी गई। तो ऐसा होता है कि ये बटरफ्लाई है वो बहुत सीजनल होते हैं, साइट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ये अपना प्लम्बियस सिल्वर लाइन है, वो जहाँ पे मिलता है वहां पे बहुत होता है पर कहीं और जगह पे नहीं मिलता। तो ये हो सकता है कि जब इवांस ने अपनी टूर की होगी तब कुछ ऐसा है कि जो उनके लिए कॉमन होगा, और कुछ ऐसा होगा कि वो सीजन और वो एरिया के लिए रेयर होगा।
तो उसमें एक रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत थी, और अभी जो नया अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट के हिसाब से ये सारे स्पीसीज है वो निकलवा दी है। फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी स्पीसीज है, जैसे कोई PRO की स्पीसीज है जो अभी प्रोटेक्टेड है, तो अगर हम गाड़ी से जाते हैं और वो टक्कर लग जाती है, या तो PRO है वो अपना बेर जो हम बेरी खाते हैं, बेरी के प्लांट पे, जीजीफस पे उस प्लांट है, तो वहां उसको निकालते हैं या तो कुछ हम डालते हैं, तो उसको मारने जैसा गुनाह है वो उसमें होगा। तो अगर हम कर रहे हैं तो भी हमें जागना है, और उसके लिए क्या हम सुधारा कर सकते हैं वो भी हमें देखना होगा। अभी बात आई कि बटरफ्लाई के लिए कॉरिडोर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें बटरफ्लाई बहुत पसंद है, हमने एक गार्डन बना दिया या तो फॉरेस्ट कोई पैच बना दिया, वहां पे अच्छी डाइवर्सिटी है, इतना हमने कर दिया, वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे बटरफ्लाईज है वो माइग्रेट करते हैं। जैसे अभी हमने पेंटेड लेडी की बात की, तो वो अक्रॉस द ग्लोब माइग्रेट करती है, एक दो इसके कंटेंट छोड़ के वो अक्रॉस द ग्लोब है वो माइग्रेट करती है। एंटार्क्टिका में नहीं होती, ठंडे जो भी है वो बाकी करती है। जैसे हमारे क्रोज एंड टाइगर्स है, वो भी वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट टू वेस्टर्न घाट माइग्रेट करते हैं। उनका माइग्रेशन और जो है एनिमल के माइग्रेशन से डिफरेंट होगा। जैसे कि बर्ड कब माइग्रेट करते हैं, वहां पे बहुत ठंड हो जाती है, तब वो एक यूरोप से इंडिया आएंगे। जैसे एलिफेंट कैसे माइग्रेट करते हैं, जब वाटर स्कैरसिटी होगी तब वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। पर जो बटरफ्लाई का माइग्रेशन है वो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन होता है, वो ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट होता है, और उसमें बहुत हद तक सिमिलर सा एक क्लाइमेट है वो रहता है। सिर्फ वो हैवी रेन से बचने के लिए, जब वेस्टर्न घाट में हैवी रेन होने का टाइम होता है तब वो ईस्टर्न घाट में चले जाते हैं, और ईस्टर्न घाट में जब होता है तब वेस्टर्न घाट में आ जाते हैं। दूसरा उनका ये होता है कि जैसे एलिफेंट जो मतलब एक जगह से माइग्रेट करके गया वो ही वापस आता है, पर बटरफ्लाई में उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो वापस आती है। तो इनके बीच में जब वो माइग्रेट करते हैं तो उनको बीच बीच में कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए, शेल्टर चाहिए, वो सब चाहिए। तो अगर हमारा अगर कॉरिडोर है वो मैनेज नहीं है, अगर हर जगह पे हम विडीसाइड्स डाल रहे हैं, या तो क्रॉप पैटर्न चेंज हो गई है, या तो वहां पे वो ट्री कंपोजिशन है वो चेंज हो गया है, या तो कोई बड़े बड़े शहर आ गए हैं, तो वो सारी चीजें हैं वो उनके माइग्रेशन में इम्पैक्ट करती है, वो उनके पॉपुलेशन में भी इम्पैक्ट करती है। तो हमारा क्रॉप पैटर्न चेंज, वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड, और हैबिटेट चेंज, वो पूरा माइग्रेशन है उनमें इम्पैक्ट करता है। तो जहां जहां भी ये माइग्रेशन दिखता है तो उस हिसाब से हमें कॉरिडोर मैनेज करने होंगे। माइग्रेशन 3 टाइप के होते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन जो मिल्कवीड करते हैं, वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट ऐसे करते हैं। कुछ है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन, वो पॉपुलेशन ब्लास्ट, कोई एक जगह पे बहुत सारे बटरफ्लाई हो गए तो उसको पॉपुलेशन ब्लास्ट में वो माइग्रेशन करते हैं, वो सिंगल डायरेक्शन होता है। जैसे क्रिम्सन रोज है वो सिर्फ कोस्टल बॉर्डर पे माइग्रेट करता है, वो तमिलनाडु से अक्रॉस द सी श्रीलंका तक भी पहुंच जाता है, पर वो फिर वहां से वापस नहीं आते। तो वो सिंगल डायरेक्शन है, उसमें ब्रीड करते हैं और सॉरी माइग्रेट करते हैं। और कुछ है वो ये लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, और कुछ है वो सिर्फ मतलब उनका एक डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं रहेगा, कहीं पे भी पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ सीजन में, साल में कोई भी समय पे वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो वो माइग्रेट करने लगते हैं। हमने 2-3 साल पहले गुजरात में लाइम बटरफ्लाई का एक माइग्रेशन है वो नोट किया था। ये हो सकता है इससे पहले भी हुआ हो, पर उस टाइम गुजरात में इतने सारे बटरफ्लाई वॉचर्स नहीं थे, इस बार थे। तो हमने देखा तो वो पूरा नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में वो माइग्रेशन था। तो वो सारा जब भी माइग्रेशन होता है तो उसके लिए हमें कॉरिडोर्स जो भी उनके डेडिकेटेड रहते हैं उनको मैनेज करना होगा। अब देखते हैं कि बटरफ्लाई
कैसे इंडिकेटर स्पीसीज है, तो बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी, शेप, साइज, कलर, माइग्रेशन, पॉपुलेशन एंड ब्रीडिंग, वो सब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड हैबिटाट से कनेक्टेड है। कैसे वो देखते हैं कि कुछ बटरफ्लाई जैसे कि स्पॉट शॉर्ट टेल है, वो समर में दिखेगा, जैसे ही बारिश होगी तो वो हाइबरनेशन में चला जाएगा। अगर उसका साइंटिफिक नेम देखेंगे स्पॉट शॉर्ट टेल का, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो जमीन पत्तों में मिट्टी के बीच में उसका प्यूपा है, वो 8-9 महीने तक हाइबरनेशन में रहता है, जैसे बीटल्स रहते हैं जमीन के अंदर, ऐसे ही। तो उसी के हिसाब से उसका भी एक नाम पड़ा है, साथ में ये याद आया तो ये बताया। तो डाइवर्सिटी इन सब पे करती है। कभी कभी फूड कम मिला है, या तो फूड है उसकी डाइवर्सिटी कम मिली है, तो भी उनके कलर्स में और साइज में फर्क होता है। हम पेंसिस बटरफ्लाई को देखेंगे तो उनमें ड्राई सीजन फॉर्म और वेट सीजन फॉर्म में विंग के शेप में भी फर्क आता है, कलर्स में भी फर्क आता है। पॉपुलेशन और ब्रीडिंग तो हम समझ ही सकते हैं। अभी हमें ये देखना होगा कि कैसे वो इम्पैक्ट करता है। तो पहले हम देखेंगे कि बटरफ्लाई है वो, उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, कुछ दिनों से लेके कुछ ही बटरफ्लाई कुछ महीनों के लिए जीते हैं। तो एक कुछ 2 यूनिवर्सिटीज की स्टडी हुई, तो ये पता चला कि कुछ बटरफ्लाई ये ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनको प्यूपा में से निकलने का जो टाइम था, उनसे वो 2.5 डेज पहले निकल गए, और वो ही टाइम पे अभी फ्लावर्स आए नहीं थे। तो जो बटरफ्लाईज प्यूपा में से जल्दी निकल गए और उस टाइम अभी फ्लावर्स आए नहीं थे, तो उनको फूड की शॉर्टेज हो सकती है, या तो अभी वहां पे ये चल रहा है अपना ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो अभी अगर पेड़ में पत्ते नहीं है, पतझड़ चल रहा है, तो उनके लिए खाने की, तो एडल्ट बटरफ्लाई और एक ले करने के लिए कैटरपिलर के लिए भी खाने की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये सारी वजह से जो बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी थी, तो 130 सालों का एक डेटा है वो पूरा देखा गया, तो उसमें से मोर देन 12% बटरफ्लाई स्पीसीज है वो वहां से कम हो गई है। दूसरा वो कोल्ड ब्लडेड है, तो या तो बहुत ठंड हो गई या तो टेम्परेचर बढ़ गया, दोनों में उनका मरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जैसे ही ये क्लाइमेट चेंज होता है, उसके साथ साथ ही प्लांट कंपोजिशन भी चेंज होता रहता है, उसकी भी सीधी असर उनकी ब्रीडिंग और उनका ब्रीडिंग पोटेंशियल दोनों पे होती है। हम उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये जो स्टडी हमने किया है वो लाइम बटरफ्लाई के लिए नहीं किया है, पर लाइम एंड कॉमन मॉर्मोल आर द बटरफ्लाईज, कि वो आसानी से लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं, हर जगह पे मिलते हैं, इसलिए वो 2 बटरफ्लाई के साथ में वो एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे लाइम बटरफ्लाई है वो फीड करता है, लाइम के नाम से ही हमें पता चलता है कि लेमन है या साइट्रस की कुछ है वो, और वो अपना करी लीफ पे भी वो फीड करता है। तो उसकी कैटरपिलर लाइम बटरफ्लाई की, जो कॉमन लाइम बटरफ्लाई है, उसकी कैटरपिलर साइट्रस के कोई भी पत्ते खाएगी, या तो करी लीफ के भी कोई भी पत्ता खाएगी। तो अगर कोई कैटरपिलर है, उसने साइट्रस के पत्ते खाए हैं, उसका एग ले करने की कैपेसिटी, और जो कैटरपिलर ने करी नीम के पत्ते खाए हैं, उनके एग ले करने की कैपेसिटी वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि दोनों पेड़ में जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। तो उससे क्या होगा, तो कि सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में अगर उसको वही टाइप का फूड मिलता रहा, तो उसका जो ब्रीडिंग पोटेंशियल है उसमें सीधी एंड नेगेटिव, डायरेक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। साथ में ऐसा कोई बटरफ्लाई होगा कि जो कोई और प्लांट पे फीड कर रहा है, उसकी कैटरपिलर कोई और प्लांट पे फीड कर रही है, पर हमने यहाँ पे साइट्रस नींबू की खेती कर दी, या तो हमने करी नीम की फार्मिंग कर दी, तो उससे और जो प्लांट है वो या तो कम हो जाएंगे या तो नहीं रहेंगे। तो एक बटरफ्लाई है, उसकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम होगी,
जरूरी नहीं है कि जैसे हमने लेमन की फार्मिंग कर दी तो लाइम बटरफ्लाई बहुत बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा होगा कि 1-2 जनरेशन है वो शायद बहुत बढ़ जाए, पर उसके बाद उनकी एग ले कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ग्रेजुअली जो उनकी ब्रीडिंग पोटेंशियल है वो कम ही होता जाएगा। तो क्लाइमेट के साथ में क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट वो दोनों इंटरलिंक है। तो वो दोनों इंटरलिंक है तो उसकी और ये जो इंसेक्ट है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो छोटी सी मतलब टेम्परेचर, अच्छा जैसे अभी बिन मौसम बारिश हो गई तो वो जो टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो सारी भी इसमें एक इम्पैक्ट होगी। हमने एक बर्ड्स के साथ भी काम किया था, और अभी हम जब पोलिनेटर्स की बात कर रहे हैं कि जैसे अगर पहली पहली बारिश आई फिर कंटिन्यूअस बारिश आने लगी तो ऐसा हुआ कि ग्रास नहीं बढ़ी। ग्रास नहीं बढ़ी तो अगर बारिश कंटिन्यूअस है मतलब अगर 4 मंथ का मॉनसून की जगह पे बारिश का टोटल इतना ही हो रहा है, पर वो 4 महीने की बारिश 14 दिन में गिर गई। उस टाइम पे बर्ड्स ने अंडे रखे। बारिश के बाद या तो बारिश नहीं पड़ी तो फिर जब अंडों में से बच्चे आते हैं तब बच्चों के लिए वो इंसेक्ट है वो नहीं मिलते तो वो बच्चे मर जाते हैं। फिर बारिश होती है, फिर जब ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं तब उनको खाने वाले बर्ड्स इतने नहीं होते। तो ये पूरा विशियस चलकर ये सर्कल है वो चलता रहता है। तो वो सारी अगर बर्ड में हम समझ सकते हैं तो बटरफ्लाई उनसे भी सेंसिटिव है, तो उनमें भी वो सारी इफेक्ट है वो आती रहती है। तो अगर मतलब प्रोटेक्ट व्हाट यू एंजॉय, अगर हमें ज्ञान कितना भी हो पर कोई चीज अगर हमें पसंद नहीं है तो हम उनको बचाएंगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि अगर कोई आपने किसी को ब्रीड किया है फिर वो रिलीज करेगा उसके मतलब बटरफ्लाई आपके हाथ पे ऐसे चल के जाएगा तो फिर कभी नहीं लगेगा आपको, कभी इच्छा नहीं होगी कि चलो ये कैटरपिलर आ गई है सबको निकाल दो, पेस्टिसाइड्स डाल दो। आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल फ्यू इयर्स बिफोर, तो वहां पे कुछ बच्चों को टॉनी कॉस्टर बहुत पसंद था। तो फिर उन्होंने वो पूरे फार्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी शुरू कर दी और उसके साथ उनके होस्ट प्लांट लगाने भी शुरू कर दिए। तो यही है कि अगर आपको कुछ पसंद आ गया, उसमें प्यार हो गया, तो फिर उसके कंजर्वेशन के लिए बाहर से एफर्ट्स किसी और को नहीं लगाने पड़ेंगे, हम खुद कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें ऐसी कोई जगह सेलेक्ट करनी होगी। देख, आप बॉम्बे में रह रहे हैं तो भी बुला सकते हैं अपने घर बटरफ्लाई को, और आप गांव में रह रहे, फॉरेस्ट में है, डेजर्ट में है या समंदर के पास है, हर जगह पे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये और बटरफ्लाई के लिए आपको जहां से कैटरपिलर मिलती है उसको लेके आ जाइए, उसके साथ उसके पत्ते भी लेके आ जाइए। उसको एक अच्छे से बॉक्स में रखना है और उसमें एरेशन होना चाहिए साथ में, और उसको वही पत्ते हैं, फ्रेश पत्ते हैं वो खिलाने हैं। ऐसे फिर कैटरपिलर हम या तो ऐसे लगा सकते हैं या तो कोई पतली सी स्टिंग जैसा उसमें रख देंगे तो प्यूपा उसी पे अपना कैटरपिलर उसी पे अपना प्यूपा बना देगी और फिर हम हाथ से उसको रिलीज कर सकते हैं। बटरफ्लाई को जरूरी नहीं है, ऑल बटरफ्लाई नेवर फीड ऑन दिस फ्लावर्स, तो उनको घर पे बुलाना है तो हम अभी मैंगो की सीजन है, मैंगो खा लीजिए पर बाहर उसका छिलका रख लीजिए, वाटरमेलन खा लीजिए, फिर बनाना है राइपन तो आपकी जो बालकनी है उसमें रख दीजिए। आपको जो भी करना है, जैसे आप फ्लावर्स भी लगाएंगे, बंच पे लगाएंगे, और हमारे यहाँ BNHS की ही बहुत सारी वीडियोस है बटरफ्लाई गार्डनिंग, और वो तो आप देख पाएंगे। पर ये ऐसी चीज है कि आप आपके घर पे कर सकते हैं। आपका एक पुराना सा कोई सॉक्स है उसमें आप केला डाल दीजिए, उसको लटका दीजिए, तो बहुत सारे बटरफ्लाई है वो आपकी बालकनी में आ जाएंगे। हाँ, पर बटरफ्लाई को पता नहीं है कि आज आपने लगाया तो आज के आज नहीं आ जाएगा, तो आपको थोड़ी धीरज है वो उसमें रखनी है। पर जैसे फ्लावर्स में बटरफ्लाई आते हैं, फ्रूट्स में भी इतने ही बटरफ्लाईज हैं वो आते हैं। पर आज जरूरी है कि हम अपना एटीट्यूड ऐसे डेवलप करें कि अगर हमारे प्लांट में कोई कैटरपिलर है
तो हमें देख के मतलब हम ये नहीं हो जाए अरे ये कैसे कैटरपिलर आ गई, हम मेरा प्लांट खराब कर देगी, पर हमें वहाँ पे एटीट्यूड ऐसा डेवलप करना है कि एक खुशी आ जाए कि चलो इसमें से कल मेरे घर पे एक बटरफ्लाई है वो ब्रीड होगा, मेरे वहाँ पे एक अच्छे से होगा, कोई जीव है वो मेरे घर से ब्रीड होके फिर वो रिलीज कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट बटरफ्लाई एंड कंजर्वेशन। और हर चीज हम उनके साथ काम करते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है वो हमें में आती है। जैसे अभी हम फॉरेस्ट में काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि आज अगर लायन ने हिरण का वो किल कर दिया तो हिरण सब बैठ के शौक सभा नहीं मनाएंगे, तो वो लोग मूव ऑन करते रहते हैं। तो जो भी आप स्पीसीज के साथ काम करते हैं वो आपको कुछ न कुछ सिखा के जाती है। तो बटरफ्लाई भी वही सिखाते हैं कि आपके पास जितना भी समय है थोड़ा ही सही उसको जी ले, काउंट द मोमेंट, और उसको जी ले अच्छे से। एंड थैंक यू ऑल। अभी हम वो क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am, for the wonderful session, and I hope all participants have enjoyed the session. So now the session is open for discussion. So you can the chat box is open. You can type your question in chat box. So our guest speaker will give you answer. So chat box is open now. If you have any questions, if you can unmute yourself, no issue. But we can take the question one by one. Okay. So Shraddha Vakil, she want to ask one question. So yeah, so you can unmute yourself. You can ask. Do all butterflies hibernate? Hello? Yeah, Yes. do all butterflies hibernate or only specific one? And duration of hibernation? Okay. No, not all the butterfly hibernate. Some of them, and at different stage. Some hibernate as eggs, some as a caterpillar, mostly as a like in a pupa form. But not all the butterfly get hibernate. And duration vary species to species, season to season. Okay. Thanks. Okay, someone is asking what is the average lifespan of butterfly? Again, it is depend on species to species and season to season. One question, ma'am. Again, please share a few example of specific species as a specific pollinator for common fruits and vegetable. Okay, like bees, honeybee. Okay, they are the best example for this pollinators. And in case of this butterfly and moth, they feed on variety of flowers. Like some butterfly feed on large flowers. Okay, like if they are big and they have long now. Some butterfly are very small, they need compound flowers. So it's depend on, like, we cannot say that these four are very good pollinators, these three are average pollinators. It's depend upon species and crop. Hello. Butterfly species and crop species. Hello, Ruchi. Hello. हाँ हेलो. Yes. हाँ मेरे लेमन के प्लांट पर कॉमन मॉर्मन एग देती है, लेकिन उनका प्यूपा जो है वो कोई वास्प उसमें अपना अंडा दे देता है और वो अक्सर तितली नहीं निकल पा रही है, तो मैं क्या करूं? तो सर वास्प को भी जीना है ना, तो हर एक पे तो नहीं आ जाएगा, तो नहीं, मोस्टली 4-5 हमने पीपल को देखा। हाँ। बहुत की मैं जूलॉजी का छात्र रहा हूँ, इसलिए ऑब्जर्व करता हूँ उसको, नेचर लवर हूँ, तो उसमें होल छोटा सा मिल जाता है, फिर ब्लैक हो जाता है, डेथ हो जाता है उनका।
हाँ और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्या कैसे उनको बचाऊं? हाँ, तो मतलब एक तो ये है कि ये नेचुरल साइकिल है, तो उसको भी एंजॉय करना है एज अ साइंटिस्ट। आप तो बहुत जूलॉजी के स्टूडेंट ही रहे हैं। जी। दूसरा, अगर आपको कोई एक ब्रीड भी करना है, मैं तो मतलब पर्सनली तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये सब कुछ भी देखना है कि कितनी कैटरपिलर में से कितनी वास्प ने इन्फेक्टेड कर दी, ये हाँ। सारा। पर अगर आपको वो करना है तो आप उसमें से कोई कैटरपिलर है वो लेके फिर आप बॉक्स में उसको ब्रीड कर सकते हैं। तो वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। बाकी नेचर को लगता है कि उसको एंजॉय करना है जो भी हो रहा है वो। ओके ओके, मैंने हम समझ सकते हैं कि फूड चेन बरकरार रहना चाहिए, सर। लेकिन हमको दुख हुआ कि 4-5 हमारे पास लेमन के गाछ है, पेड़ है, पौधे हैं, उन पर मैं देखता हूँ कि सीजन में काफी कुछ उसमें हर हर प्लांट पर आपको बटरफ्लाई के बहुत सारे एग से लेकर सबका मैंने फोटोग्राफी किया है। और जब प्यूपल स्टेज को मैं देखता हूँ, ओपन गार्डन में है सब, तो बड़ा दुख होता है मुझे कि वो मर जाते हैं। तो केज कैसा होना चाहिए उनको रखने के लिए? आप उसको प्लास्टिक बॉक्स में रख सकते हैं, या तो आप अच्छा उसको हार्डबोर्ड के पेपर बॉक्स या उसमें भी अच्छा, रख सकते हैं, ओके बॉटल ओके में भी रख सकते हैं। बस उसको क्लीन रेगुलरली करना है। और बटरफ्लाई को हैंडल करने मतलब कैटरपिलर को हैंडल बहुत ब्रश या ऐसे आराम से करिए, हाँ वो हाँ मतलब प्रेस ना हो जाए उस ऐसे। और उसको ओके फ्रेश लिफ्ट देना है, छोटे छोटे हॉल्स भी कर देने हैं, और उसको एंट ओके। से बचाना है। एंट के लिए क्या किया जाए? एंट तो है यहाँ। तो आपका जो बॉक्स है उसके आसपास कुछ ऐसा हल्दी या ऐसा कुछ कर दीजिए, पानी रख दीजिए कि जिससे एंड अच्छा, अंदर ना आ जाए। ओके ओके ओके, आई और बॉटल के अंडरस्टैंड। ऊपर कपड़ा हम बांध के बंद कर सकते हैं, उसका ढक्कन से शायद एयरटाइट डब्बा हो तो आप उसको कपड़ा बांध के, सूती का कपड़ा, और ऊपर से बंद कर सकते हैं। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं Good noon, इस सीजन Ruchi में ma'am. करूंगा, तैयारी करूंगा। ओके, थैंक यू। Hello, good noon, Ruchi ma'am. My question is, am I audible? Yes, please. My question is, nowadays butterflies are declining at a very fast speed. A few years back, we could see many colorful and brightful butterflies, but आजकल नहीं देखने को मिलती वो। तो कोई specific reason आप बता सकती हैं कि why the number is declining and how can we be helpful to increase the number? आप कहाँ से बोल रहे हैं? I'm Tarandeep from Yamuna Haryana. ओके। देखिए, बहुत सारे जो हमारा सेशन का ही था कि जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग है, आपके कुछ दिन ऐसे हैं कि जहाँ पे 40-42 जो शायद नहीं हो रहा था, ऐसा भी टेम्परेचर जा रहा है। तो साल Yes. के कुछ दिन बहुत हॉट हो रहे हैं, तो रेन पैटर्न है वो चेंज हो गई है, और क्रॉप पैटर्न है वो भी वहाँ पे चेंज हो गई है। तो ये सारी मतलब सिर्फ इसमें 1+1 नहीं होता, इसमें 1+1 2 नहीं, 1+1 11 जैसा हो जाता है। कोई एक रीजन से नहीं, बहुत सारे रीजन होंगे जिससे वो डिक्लाइन होगा ऐसा। पर हमें ये भी हो सकता है कि आप आसपास में ऐसा हम एक माइक्रो क्लाइमेट कर सके, क्योंकि ऐसा डिक्लाइन तो नहीं हुआ होगा कि पूरे दिख ही नहीं रहे। तो काफी अगर कम, हमें बहुत कम। नंबर इज रियली डिक्लाइंड। मतलब जैसे सुंदर बटरफ्लाईज कुछ साल पहले दिखती थी, अब नहीं दिखती हैं वो। रेयर, नॉट हाँ, तो मच। आपके आसपास मतलब अगर अर्बन एरिया है तो वो चेंज हुआ होगा, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उसको उसके कैटरपिलर के लिए होस्ट प्लांट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो कहाँ से आएगी? और अगर आप आपके घर में एक छोटा सा एक गार्डन बना सकते हैं, बटरफ्लाई गार्डन, एक माइक्रो क्लाइमेट भी पानी और वो रख के भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम फिर हमें पता चलेगा कि चलो इतने इतने बटरफ्लाई आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या चेंज होगा। कुछ ऐसा भी हुआ होगा। एक एग्जांपल, अगर मतलब देयर आर सो मेनी हाइपोथेसिस, वन ऑफ द हाइपोथेसिस अभी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज नॉट द ओनली हाइपोथेसिस, वन ऑफ द हाइपोथेसिस। जैसे हमारा वॉन्डरर है, वो टाइगर की मिमिक करता है। वो जो टाइगर की मिमिक्री करता है, वो टाइगर तो हमारे यहाँ पे पाया नहीं जाता। तो उसमें दो जैसे क्रिम्सन रोज की मिमिक्री मॉर्मोन करता है,
तो मॉर्मोन हमारे सौराष्ट्र और ऐसे पार्ट में मॉर्मोन का क्रिम्सन रोज का मिमिक्री वाला मिला कि जहाँ पे क्रिम्सन रोज होता ही नहीं है। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो क्रिम्सन रोज है उसका जो नेचुरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ होगा, या तो रोज का है वो बढ़ा होगा। ये दोनों हाइपोथेसिस है। तो ऐसा आपके किस में भी हो सकता है कि किसी का कम भी हुआ होगा और किसी का बढ़ा भी होगा। पर अगर कम हो रहा है तो मतलब एक छोटी सी जगह से हम उसको काम शुरू कर सकते हैं, पर वो सफिशिएंट नहीं होगा। मतलब बटरफ्लाई गार्डन क्रिएट करना वो अवेयरनेस के लिए है, पर हमें पूरी हैबिटाट ही बचानी होगी, इंक्लूडिंग कॉरिडोर्स। So the main हम क्या कर सकते हैं to grow more plants and flowery trees, I think, huh? हाँ, और हर टाइप की डाइवर्सिटी, नेटिव डाइवर्सिटी, और स्टॉप यूजिंग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड। लॉन बंद कर दीजिए आप। अब जो वीड हो रही है, अगर आपने बहुत महंगा भी लगाया, पर ट्राइडेक्स पे जितने बटरफ्लाई आएंगे वो और किसी पे नहीं आएंगे। तो ट्राइडेक्स वो वीड होती है, यू मस्ट बी नोइंग। तो जो भी है हमें वीड निकालनी भी है कहीं कहीं तो बहुत कम निकाले और हाथों से निकाले, मशीन भी नहीं, और उसको रहने दें। तो हमारे लिए जो वीड है वो बटरफ्लाई के लिए बहुत काम की चीज होती है। Okay. Thank you. और प्लांट नेटिव ट्रीज, नेटिव ट्री का ही, और हर लेयर पे करना है। जो भी जहां से भी काम कर रहा है बटरफ्लाई के लिए, तो वहां की जो भी नेटिव वेराइटी है और हर्ब, श्रब, ट्रीज जो भी है, पर हमें नेटिव पे ही फोकस रखना है। Right. मैम, आई एम निर्विशा। यस निर्विशा। मैम, आप पॉलिनेशन की प्रोसेस बच्चे समझ सकते हैं, ऐसे समझाओगे? ओके, पोलिनेशन जो फ्लावर होता है, फ्लावर में ऐसे दो छोटे छोटे पोलन होते हैं। वो पोलन का ऐसे एक फ्लावर के स्टिग्मा से लेके दूसरे में जाना जरूरी होता है। तो वो खुद से नहीं जा सकते, वो चल के नहीं जा सकते। तो वो तो या तो विंड से जाएंगे, या तो उसको कोई ना कोई पॉलिनेटर्स लेके जाएगा। तो जैसे हनी बी है, तो हनी बी के पैर में ऐसा कप जैसा होता है, उसमें पोलन भरे जाते हैं, वो दूसरे पे जाएगा तो उस पे डाल देगा, तो वहां पोलिनेशन होगा। बटरफ्लाई की विंग में या पैर में वो चिपक जाते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो वहां पे वो गिर जाता है, तो उस हिसाब से वो पोलिनेशन होगा। थैंक यू मैम। Okay, I hope there is no question now, right? So, just a minute, there is one question. Okay, so we have created the WhatsApp group. So if there is any questions, then you can just type your question in WhatsApp group. So our speaker will give the answer. So now it's time to conclude the session. So it has been such an honor to be part of this wonderful event. So I am glad to be standing here. I am glad to here to express my vote of thanks. So on behalf of EICP, resource partner on avian ecology at Bombay Nature Society, I would like to extend my heartfelt gratitude to our funding agency, that is MOFCC. A special thanks to our today's speaker, Ms. Ruchi Dave. So thank you, ma'am. It's a very wonderful session. So I also thanks to our coordinator, Dr. Sujit Narwade, for always supporting and guiding us. A special thanks to our organizing team members, Mr. Suraj Gosavi and Ms. Natasha Girkar, so who work tirelessly to plan and execute this webinar. So your dedications and professionalism also are commendable. So at the end, thanks to all participants who made this event memorable for us. Finally, I would like to thank of you for presenting and asking the questions to our speaker. So we can touch through WhatsApp group. So WhatsApp group always open. It's not open to everyone. Like we have admin level. So whatever question you can just post
to admin only. So admin will forward this question to our speaker, and speaker will give you answer. And the group will continue. We will share all our knowledge products, all our avian ecology related information, even butterfly related information also we will share. So thank you, ma'am, again, and thank you all participants. So now I uh, conclude the session and turn off the. Thank you. Thank you. Yeah, yeah, ma'am. Thank you, ma'am, and thank you all participants. हाँ तो चालू है हेलो